آغاز میں آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ نے صحافی ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ آج ہی درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ آج ہی جمع کرائیں تاکہ کل اس پر سماعت ہو سکے۔ عدالت نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران میڈیکل رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا اور وزارت داخلہ سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ سپریم کورٹ کا صحافی ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ آج ہی درج کرنے کا حکم۔ ارشد شریف کے قتل پہ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے استفسار کیا کہ مقدمہ درج کیے بغیر تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی جسے کینیا سے واپس آئے کافی عرصہ ہو گیا۔ حتمی رپورٹ سپریم کورٹ کو کیوں نہیں ملی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رپورٹ کیوں نہیں آ رہی؟ جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی وہ بھی غیر تسلی بخش ہے۔ سینئر ڈاکٹرز نے میڈیکل رپورٹ تیار کی لیکن وہ تسلی بخش نہیں۔ چیف جسٹس کے استفسار پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بتایا وزیر داخلہ فیصلہ آباد میں تھے جب رپورٹ آئی۔ رانا ثناء اللہ کے دیکھنے کے بعد رپورٹ سپریم کورٹ کو دی جائے گی۔ رپورٹ میں کچھ حساس چیزیں ہو سکتی ہیں جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ وزیر داخلہ کو رپورٹ تبدیل کرنی ہے۔ ہمیں اطلاع آئی ہے کہ رپورٹ 600 صفحات پہ مشتمل ہے۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ آج ہی جمع کرائیں تاکہ کل اس پہ سماعت ہو سکے۔ 43 دن سے رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں، معاملہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت کل 7 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ آگے بڑھیں گے۔ ارشد شریف کا قتل انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن کے لیے خط لکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جرنلسٹ سیفٹی فورم کی تقریب سے خطاب، کہا ارشد شریف کے معاملے پر کینیا کے صدر سے بات چیت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اس معاملے پر کینیا کے حکام سے رابطے میں تھے۔ صحافیوں کا تحفظ، سیکیورٹی اور حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ The recent murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself, and also our Foreign Office Foreign Minister Bilawal Bhutto was in coordination with Kenyan authorities, and I spoke to other agencies in Pakistan for speedy action in this behalf and also return of his body back to Pakistan. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission, and I hope some action will be taken in this behalf. رہنما تحریک انصاف فواز چودھری کہتے ہیں کہ ارشد شریف کی شہادت پر از خود نوٹس لینا خوش آئند ہے۔ سپریم کورٹ اور جج صاحبان سے عوام کی توقع ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے لیے جو بھی دباؤ ہو اس کے باوجود آئین کی حاکمیت کے لیے کھڑے ہوں گے اور انسانی حقوق کی حفاظت کریں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ارشد شریف کیس پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس میں بہت سارے چھپے ہوئے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ قوم عمران خان پر حملے اور اعظم سواتی کیس میں بھی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ فضل الرحمان کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، شہباز شریف سے ملاقات کی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی ممکنہ تحلیل روکنے کے لیے حکمت عملی پر مشاورت کی گئی ہے۔ بدلتی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی جنگ میں پی ٹی آئی کو ناکامی کا سامنا۔ عمران خان، فواد چودھری، اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھی جائے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے متعلق پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس کو توہین الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستوں پر جلد فیصلہ کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی سے نہیں بلکہ حتمی فیصلے سے روکا ہے۔ عدالت کے ریمارکس، سپریم کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف درخواستیں نمٹا دیں۔
उधर लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर ऑडियो लीक पर FIA की जानिब से इमरान खान की तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए ताहुक्म इस्तानी उस पर अमल दरामद रोक दिया। जस्टिस अजर जावेद घराल ने रिमार्क्स दिए, ये एक हसास मामला है, ऑडियो लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इसी पर तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शुएब अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शुएब, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अजर जावेद घराल ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने इमरान खान की तलबी के FIA के नोटिस पर अमल दरामद मुअत्तल करते हुए FIA से 19 दिसंबर को तफसीली जवाब तलब कर लिया है। आज दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल में अदालत को ये बताया कि FIA ने सियासी बुनियादों पर यह इंक्वायरी शुरू की, जिसका मकसद सियासी बुनियादों पर उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम हाउस से ऑडियो लीक होना हसास मामला है, इस पर जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इमरान खान के वकील का कहना था कि FIA ने इंटरनेट से उठाकर एक ऑडियो की इंक्वायरी शुरू कर दी, जिसके मुतालिक तस्दीक अभी तक नहीं हुई कि वो असली भी है या नहीं। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत FIA को इस्तेमाल कर रही है। मुल्क भर में मुकदमात दर्ज करने के बाद उन पर कातलाना हमला भी किया गया। उनका कहना था कि इमरान खान को डॉक्टरों ने बेड रेस्ट की हिदायत की है, मगर FIA इसके बावजूद उन्हें तलब कर रहा है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या फोरेंसिक के बगैर किसी ऑडियो पर इंक्वायरी शुरू हो सकती है और क्या मजीद लोगों से भी पूछगछ होगी या सिर्फ 3-4। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। और अब ये खबर कि इसहाक डार को बड़ा रिलीफ मिल गया है। नैब ने पहले असासे जब्त किए, अब बहाल करना शुरू कर दिए हैं। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में वज़ीर ख़जाना के असासे बहाल करने के लिए कार्रवाई का आगाज़। नैब ने पंजाब के मुख्तलिफ इदारों को मरासला जारी कर दिया। इसहाक डार के असासाजात में लाहौर में बंगला और मुख्तलिफ बैंक अकाउंट शामिल हैं। हमारी छोटी से छोटी बात पर फौरी खुद नोटिस ले लिया जाता है। इमरान खान ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो उनके आइन और कानून की धज्जियां उड़ाना अब किसी को नजर नहीं आता। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का शिकवा, पाकिस्तान में जितनी छूट इमरान खान को मिली है किसी और को नहीं मिल सकी। इमरान खान पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहे कि न्यूट्रल एम्पायर वो लेकर आए, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में इदारों और सरबराहान के न्यूट्रल होने पर बहुत तकलीफ है। हमारी तो छोटी छोटी बातों का नोटिस लिया जाता है। ये खान साहब के पास क्या सुलेमानी टोपी है कि इनको कोई पूछ नहीं सकता। ये अदालत की तौहीन करें, उसमें भी इन्हें कोई नहीं पूछ सकता। जितनी ताकत के मराकज से इमरान खान साहब को छूट मिली, पाकिस्तान के किसी सियासतदान को नहीं मिली। इमरान खान साहब जो सारी दुनिया में डंडोरा पीटते हैं कि न्यूट्रल एम्पायर मैं लेकर आया, तो अगर अपने मुल्क के अंदर एम्पायर न्यूट्रल हो रहा है तो उसके ऊपर उन्हें तकलीफ है। उनकी चीखें निकल गई और उन्होंने मीर सादिक, मीर जाफर, न्यूट्रल तो जानवर होता है, क्या क्या बयानियां बना दी है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब की सियासत बिक गई है। उसका सबसे बड़ा सबूत कश्मीर के हालिया इंतखाबात है। इस्लामाबाद में एक शॉपिंग मॉल को सील करने पर ताजरों और मुलाजमीन का शदीद एहतजाज। जनाब एवेन्यू को बंद कर दिया गया और पार्लियामेंट जाने वाली सड़क ब्लॉक किए रखी। मुजफ्फराबाद में PTI कारकुनों का एहतजाजी मुजाहिरा, टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास में तकरीब के दौरान तकरार हुई थी। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस्लामाबाद में सेंट टोरस मॉल सील करने के ऊपर एहतजाज, ताजरों और मुलाजमीन ने जिना एवेन्यू को बंद किया। पार्लियामेंट को जाने वाली सड़क को भी ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि सेंट टोरस मॉल को न खोला गया तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर देंगे। ताहम मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया और सड़कें खोल दी गई। उधर आज़ाद कश्मीर के सदर मकाम मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने आज़ादी चौक पर मुजाहरा किया, टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आज़ाद कश्मीर के लिए मुझे आपसे बात करेंगे, प्रेम से बैठे हैं, आप बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ मंगला में तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास में तकरार हो गई, जिसके बाद मुबैना तौर पर इंतकामन इस्लामाबाद में सरदार तनवीर इलियास के सेंट टोरस मॉल के 2 टावर्स और तय खाने को सील किया गया, जबकि सीडीओ हुकाम का कहना है कि सेंट टोरस मॉल को बिल्डिंग रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। सरदार तनवीर इलियास ने गैर मुल्कियों के सामने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बदतमीजी की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जनरल बाजवा पर गलत इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तू तकरार करें?
वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी अता तारड़ बरसपरे मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि क़यादत इजाज़त दे तो सरदार तनवीर इलियास इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकें। वो सियासी नौमौलूद हैं जिन्हें इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा बेची। वज़ीर आज़म की तकरीब के दौरान खड़े होके फॉरेन डिप्लोमेट्स बैठे थे, मौसूफ ने खड़े होके तल्ख कलामी शुरू कर दी वज़ीर आज़म के साथ। आप हाउसिंग सोसाइटी के मालिक होंगे, बहुत बड़े आदमी होंगे, बड़ा पैसा होगा आपके पास, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप हमारे वज़ीर आज़म के सामने खड़े होके तू तकरार करें। कल कश्मीर कॉज को एक झटका लगाए कि पाकिस्तानी आपस में लड़ते हैं। आज हमें इजाजत दें तो सरदार तनवीर इलियास आप इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके जहाँ पे ये बुलंद बाला आपकी इमारत खड़ी है। जनरल बाजवा पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि जनरल बाजवा से आपका तकाजा ये था कि आप तरीके से इत्तेमाद को नाकाम बनाए। उन्होंने कहा मैं गैर आईनी काम नहीं करता। जब उन्होंने इनकार किया तो आपको गुस्सा चढ़ गया। सेंटोरस का मालिक सरदार तनवीर इलियास जो कि सियासी तौर पे एक नौमौलूद है, नाबालिग है, जब इसने वजारत उज़्मा खरीदी इमरान नियाजी साहब को रिश्वत का पैसा दे के, तो उसके बाद कश्मीर की सियासत का भी वही हाल हुआ है जो पाकिस्तान की सियासत का इमरान नियाजी साहब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में तकरार पर तहरीक-ए-इंसाफ ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इमरान खान ने ट्वीट किया, अहले कश्मीर की कुर्बानियों का जिक्र न करने पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने शहबाज शरीफ की सरज़निश की। PDM माफिया के ज़रिए सेंटोरस मॉल का सील किया जाना ये जाहिर करता है कि गुज़श्ता 8 माह से मुल्क में जंगल का कानून राइज है। फवाद चौधरी ने कहा कि सरदार तनवीर इलियास ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के कमज़ोर मौक़िफ़ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फ़ारूक हबीब कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने इंतकामन सरदार तनवीर इलियास का सेंटोरस मॉल बंद कर दिया। रूस के बाद ईरान की भी सस्ता पेट्रोल और गैस फराहम करने की पेशकश। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान जब चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की तिजारत कर सकता है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन ईरान की तरफ से मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान ईरान से मज़ीद सस्ती बिजली खरीदने के इंतजामात करे। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब का गुजरावाला को लाहौर सियालकोट मोटरवे से लिंक करने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही ने गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द से मुलाकात हुई है। MNA हुसैन इलाही भी इस मौके पर मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि लाहौर सियालकोट मोटरवे से लिंक होने से गुजरावाला के शहरियों को बेपनाह सहूलत मिलेगी। रूस के बाद ईरान की भी सस्ता पेट्रोल और गैस फराहम करने की पेशकश। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान जब चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की तिजारत कर सकता है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। और वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीली, मालियाती फ़ंड्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं। पिंडी टेस्ट के दौरान अनफिट होने के बायस बकिया दोनों मैचेस नहीं खेल सकेंगे। PCB के मुताबिक हारिस रऊफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप पे रिहैबिलिटेशन कराएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तानी चाय सभी को अच्छी लगती है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स भी मान गए, टी इज़ फैंटास्टिक। आखिर माजरा क्या है, इसी पर ये रिपोर्ट। Like the tea. The tea is fantastic. Thank you. पाकिस्तानी चाय सबको भाए, दुश्मन भी कहें टी वॉज फैंटास्टिक। The tea is fantastic. Thank you. मेहमान खिलाड़ी भी कहें चाय लाजवाब। The tea was fantastic. Yeah, tea was brilliant. बेन स्टोक्स से पूछा गया चाय कैसी थी, इंग्लिश कप्तान बोले चाय अच्छी थी। The tea was fantastic. Yeah, tea was brilliant. चाय तो चाय है, मगर नसीब अपना अपना। किसी ने मार खाकर चाय से दिल बहलाया, किसी ने दुर्गत बनाकर चाय की चुस्की लगाई। Yeah, tea was brilliant. हालिया नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि इमरान खान के सिवा किसी और सियासी जमात या शहरी ने नैब तरमीम चैलेंज नहीं की। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से इमरान खान ही नैब तरमीम से मुतासिर क्यों हुए? ये नहीं हो सकता कि कोई सब कुछ लूट कर घर बैठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, इस्लामाबाद में हुकूमती अहदेदारों के एहतसाब का हुक्म है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने
ने कहा है कि अब तक अदालत को ये नहीं बताया गया कि नैब तरामीम कौन से बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। सवाल ये है कि मुल्क में एहतसाब के अमल को यकीनी किससे बनाना है। नैब तरामीम से छूट जाने वाले किसी और कानून के तहत मुजरिम ज़रूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट आखिर किस इख्तियार के तहत बुनियादी हुकूक की बुनियाद पर एहतसाब का सख्त कानून बनाने का हुक्म दे। केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची शाह लतीफ टाउन पुलिस की हसास इदारों की इत्तला पर पोर्ट कासिम कॉलोनी में कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान का गैर मुल्की एजेंसियों के लिए फंडिंग का इंकशाफ। मुल्ज़िम अहम तनसीबात की तस्वीर बनाकर गैर मुल्की तंजीमों को फराहम करते थे। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम, तफसीलात बताइएगा। देखिए आयशा, ये थाना शाह लतीफ टाउन की पुलिस ने हसादारों के साथ एक कार्रवाई की है पोर्ट कासिम कॉलोनी में। यहाँ से 3 अहम जो दहशतगर्द उनको गिरफ्तार किया गया है। इन मुल्ज़िमान ने इंशात किया है कि मुल्ज़िमान जो है वो गैर मुल्की एजेंसियों के लिए फॉरेन फंडिंग करते थे और पाकिस्तान की अहम जो तनसीबात हैं उनकी तस्वीर बनाकर गैर मुल्की तंजीमों को फराहम करते थे। मुल्ज़िमान की शनाख्त सवगत, शिरात और तलत के नाम से इनके कब्जे से 2 दस्ती बम, 2 बम, डेटोनेटर सर्किट, बारूदी केमिकल, असला और एक रिक्शा बरामद हुआ है। मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। करप्ट सरकारी मुलाजमीन को रंगे हाथों पकड़ने वाली एंटी करप्शन की छापामार टीमों के लिए कैमरे और ऑडियो डिवाइसेस खरीदने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में तैनात एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसरों के लिए 100 कैमरे और ऑडियो डिवाइसेस खरीदी जाएंगी। एंटी करप्शन की तफ्तीशी टीमें ट्रैप रेड की रिकॉर्डिंग अदालतों में बतौर शवाहिद भी पेश करेंगी। नुमाइंदा न्यूज़ वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन पंजाब का ये बड़ा इकदाम देखने में आया है। अब सरकारी मुलाजमीन को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। एंटी करप्शन की छापामार टीमों के लिए कैमरे और ऑडियो डिवाइसेस खरीदी जा रही हैं और सूबे भर में तैनात तफ्तीशी अफसरान के लिए रवां हफ्ते 100 कैमरे और ऑडियो डिवाइसेस जो हैं वो खरीदे जाएंगे। डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर का कहना है कि ट्रैप रेड्स में शफाफियत लाने के लिए कैमरे और ऑडियो डिवाइसेस जो हैं वो खरीदी जा रही हैं और जो वीडियोस होंगी वो उनकी रिकॉर्डिंग अदालतों में बतौर शवाहिद भी पेश की जा सकेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी इदारा सेहत ने रवां साल मुल्क भर के डेंगू केसेज अमवात की रिपोर्ट वजारत सेहत को अरसाल कर दी है, जिसके मुताबिक 1 जनवरी से 5 दिसंबर तक मुल्क में 76,210 डेंगू केसेज रिपोर्ट हुए और 136 अमवात हो चुकी हैं। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक रवां साल सबसे ज़्यादा अमवात सिंध में रिपोर्ट हुई हैं, जहाँ केसेज 22,495 और 61 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 22,799 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि 81 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में केसेस की तादाद 5,392 है और 11 अमवात सामने आई हैं। बलूचिस्तान में 5,283 केसेस और 1 मरीज जाँ बहक हुआ। सिंध हुकूमत के रिकॉर्ड बैरूनी कर्जे सूबाई हुकूमत पर मजमूई कर्जों का हजम 576 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। रवां माली साल सिंध हुकूमत मजीद 150 अरब से जायद के कर्जे लेगी। गुज़श्ता बरसों में सिंध हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्ज $2 मिलियन के कर्जों के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से मालियाती इदारों से गुफ्तशुनीद भी जारी है और इस वक्त जो है वो तकरीबन 7,009 बिलियन रुपए एक साल में सूद की मद में सिंध हुकूमत अदायगी करेगी। सिंध हुकूमत की जानिब से जो बैरूनी कर्जे हैं उसमें 7% ट्रांसपोर्ट है, जबकि तालीम के लिए 23% शेयर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद कहते हैं कि तालीम के मयार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा हज़ारों कॉलेजेस मयारी तालीम फराहम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। आड़ती लोग भी तालीम पर सरमाया लगा रहे हैं। एजुकेशन को बिजनेस समझकर लोग जिम्मेदारी भूल जाते हैं। हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है, पब्लिक इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है कि जी नई यूनिवर्सिटियाँ अभी पब्लिक सेक्टर में ना बनाए जाएं। 2-3 रीज़न है। एक तो आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजरा है हमारा मुल्क, सारी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमारे पास भी है। ऊपर से फ्लड और इस तरह के जो मसाइल आने की वजह से प्रेशर पड़ा है फाइनेंशियली। वो जो होता है ना, मैं कहता होता हूँ कि आरती लोग भी एजुकेशन में आ गए, तो वो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना है। अच्छे सीरियस वन शुड नॉट टेक इट ए नेगेटिव सर। खुदा न खास्ता आरती का मतलब ये नहीं है कि वो भी अगर उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आए,
लेकिन प्रोफेशनल तरीके से यूनिवर्सिटियों को चलाएं, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और पब्लिक सेक्टर में भी बिल्कुल जहां ज़रूरत है, बल्कि हम्बल वे में छोटा कैंपस बना लें, उस पर आस्ता आस्ता इन्वेस्टमेंट करें। जब वो अच्छे वक्त हों और थोड़ा सा उनकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो बिल्कुल बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी। सऊदी अरब में फल्कियाती उलूम कमेटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने कहा है कि आज रात चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक चांद खाना काबा के ऐन ऊपर मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक 8:06 पर होगा, जिसे बुध का सूरज तलू होने तक देखा जा सकेगा। चांद के खाना काबा के ऐन ऊपर आने से उस वक्त के एतबार से दुनिया भर में कहीं से भी काबा की सिमत का दुरुस्त तयन किया जा सकता है। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में खातून से बैग लूटने की वारदात पेश आई है। खातून के बैग में 11 रोज की बच्ची मौजूद थी। वालिदा का दावा है कि बच्ची बीमार थी, सर्दी से बचाने के लिए बच्ची को बड़े बैग में डाल दिया था। वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन में खातून से बैग लूटने की वारदात पेश आई है और खातून के बैग में 11 रोज की बच्ची मौजूद थी। वालिदा ने यह दावा किया कि बच्ची बीमार थी, सर्दी से बचाने के लिए बच्ची को बड़े बैग में डाल दिया था। वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मौसम का अहवाल बताएं तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज़ मुल्क का कम से कम दर्जा हरारत लह में -9 दर्जे रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क और सर्द है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाके धुंध के ज़ेर असर रहे। अब तक के लिए इतना ही। कुछ मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।